Hello everyone, how are you? Welcome to Electron Physics classes, Physics with me, Vikas. Now, what's an article for today? What I'm going to learn today with you? I'm going to just discuss with you something which you know, but something which you have not explored much. And why should I be teaching you this particular topic is my foremost idea. That why should I be teaching that there is something which is known as a theory of the relativity. What's the quest of teaching you? Because I'm going to venture very soon into the article of the magnetic effects of current. In fact, I'm just into that. So when I'm moving into that article, I had created a fact beforehand, which you have read in the text about the dynamics of a charged particle, that there is a static charged particle which is able to produce just electric field intensity, just an electric field around itself. But when it comes to a moving charged particle, we find that it is able to produce an extra effect which is known as a magnetic field. एंड सो द बुक्स डेमार्केट बिटवीन दिस आइडिया कि स्टैटिक चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा एंड मोस्ट ऑफ अस एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट एंड सम ऑफ अस क्वेश्चन क्वेरी दैट व्हाई सो why it is so that a moving charge particle is able to produce a magnetic field while a static charge particle is not able to do so. And in this quest, we venture into our textbooks and start to find answers over there. And mostly we don't find an answer, and it appears to be a fact to us, just like the sun rises from the east. So we ask our teachers, and sometimes we don't get an apt answer, and so we are confused. So we look into the web and we don't find very correct answer, or we do find, but we did not explore a bit much into it, and we lost our curiosity. So I don't want your curiosities to die down, and I want it to live up, and live up because you are supposed to be the future researchers, and for that behavior, I'm sneak peeking into today the article of the theory of relativity, beautifully coined by our favorite Albert Einstein in something around 1903. And what I'm going to look into it, I'm going to look into it. How do we feel? How do we perceive when we are moving and wearing a clock in our hand or observing a clock as we are in a state of motion? Now we are into electrodynamics, but it's still dynamics and still motion. And someone told us, of course, good physicist told us that everything in mechanics is supposed to be relative and relative to an observer. So we just thought about that, are we a stationary observer or are we a moving observer, and then how do we observe the motion of charges. तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप पहले ये डिसाइड करो कि चार्जेस तो मोशन में है, आपने डिसाइड कर लिया, आपके रिलेटिव उनका स्टेट क्या है, दैट आर यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दोस चार्जेस, या रिवर्स सोचो कि वो चार्जेस आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है, या ऐसा तो नहीं है कि आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, एंड देन दिस relativity aspect is going to cross your mind. To reach on to that goal, I am introducing to you a concept, an idea generated by the Einstein known as the time dilation. You heard me right. I'm going to look into this article, that's the time dilation. And to understand this particular time dilation a bit, हमारी एक कोशिश है कि हम इसको समझें. So for that I have a fact check, and what is a fact check is that when you are measuring or observing the speed of light in any frame of reference, you find that the speed of light is supposed to be same. The speed of light remains the same in all reference frames. So I'm not talking about the medium, that what it is like in water, what it is like in glass. I'm not talking about that. I'm talking about the speed of the light remains the same in all the reference frames. This aspect I'm going to write down over here. But the fact check is that the speed of light, जिसको हम c से denote करते हैं, the speed of light remains the same in all reference frames, in all the reference frames like this. Fine. And then what is the consequence of it? And the consequence comes from an idea which was provoked by Einstein. We don't know whether this statement or this story which I'm going to tell you is a fact or it was just an imagination of Einstein, but it lives, the story lives. And the story is like that once the Einstein was supposed to be found at a platform of a railway station, and he was observing the clock as the train was approaching the station.
and that particular time he was supposed to be a stationary observer. And then, of course, he took a ride into the train, and the train started to move. Of course, it had to some point of time. So the train started to move, but Einstein eyes, उसकी जो उनकी जो निगाहें थी वो क्लॉक के ऊपर थी, एंड ही वॉज स्टिल ऑब्जर्विंग द क्लॉक. वो फिर से क्लॉक को देख रहे थे, और जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती गई उन्होंने देखा कि जो क्लॉक की टिकिंग है उनको स्लो लगने लगी. यू ऑब्जर्व दैट कि द क्लॉक इज टिकिंग स्लोली. उनको ऐसा फील होने लगा, एंड दिस वॉज अ थॉट विच प्रोवोक्ड इनसाइड हिज माइंड. वी डोंट नो एक्चुअली ही डिड दैट or it was just his fictional imagination, but then he started working on this idea. वो इनके ऊपर काम करने लगे, और फाइनली हमें थोड़ी सी एक रिजल्ट उन्होंने बताया कि भाई ऐसा होता है, दिस इज हाउ इट हैपन्स. एंड सो दैट्स रिजल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ कॉन्सिक्वेंस. स्टोरी से अगर आपको समझ में आया तो उनको ये लगा कि जब वो मूव कर रहे हैं तो वो टाइम को स्लो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन कंपैरिजन कि जब वो रेस्ट पे थे तो उनके लिए टाइम नॉर्मल था जैसे हम सबके लिए होता है. पर जब वो ट्रेन के अंदर बैठ के मूव कर रहे थे उनके लिए टाइम का बिहेवियर थोड़ा सा एब्रप्ट हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया. कैसा हो गया? तो उन्होंने फैक्ट दिया, जिसको हम कॉन्सिक्वेंस बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इफ एन ऑब्जर्वर इज सपोज टू बी मूविंग ही ऑब्जर्व्स द टाइम ऑफ द इवेंट टू बी लॉन्गर. जब ऑब्जर्वर खुद मोशन में होता है तो उसको जो इवेंट का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है. दिस इज हाउ द आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड दिस आइडिया. So the consequence of this idea is, the fact क्या था, the speed of light remains the same in all reference frames, and the consequence of this particular idea is which I am writing over here, that a moving observer is right along with me, that there is a moving observer records बोल दें, right, records a moving observer takes longer time to observe an event, takes longer time to observe an event. Right, this is a consequence over here. Let's understand this particular consequence. First of all, I wish to give you a visual over here that what is a stationary clock and what does a moving clock means. So for that, let's move on over here and see this. You know, like how does a clock ticks? There's a tick tock, tick tock, tick tock, and I'm going to teach you what is a tick tock. So it's not a video that is banned right now. So this is tick and tock. So this is tick. See this. This is a tick right now. T-I-C-K. The tick. And now this is a ball which is going to move. And this ball is going to move and going to hit the upper mirror. Right. There are two mirrors over there. This is a mirror M1 and this is a mirror M2. And this ball is going to hit at some time the mirror M2. And the mirrors are currently stationary. They aren't moving. So these are stationary mirrors. And we found that this ball is going to hit the upper one, the upper mirror, at some point of time. And when it hits, I say a tock. What do I say? It's a tock. It's like a periodic motion. It's going to hit back again, and then it is going to hit back at M1 again, and then I will say a tick. And then it's going to hit back at M2 again. These are successive reflections, the multiple reflections. Then I say a tock again. So the ball is oscillating. The ball is oscillating, and I am saying a tick, a tock, a tick, tock, tick, tock, tick, tock, and my clock starts ticking, my dear. So this is what is one idea. And then what happens that these mirrors starts to move somehow. जैसे कि इन मिरर्स को किसी ने ट्रेन में रख दिया हो, और अब वो ट्रेन चला दी हो, किसी फ्रेम में रख दिया हो, कि गाड़ी में, कार में, जिसमें भी रख दिया हो, या खुद लेके भाग गए हो उसको, तो आप मूव कर रहे हैं. जो वो मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सेम एक्टिविटी नहीं होने वाली है उसी पेस से. वो पेस ऑफ एक्टिविटी बदलने वाली है, क्योंकि ये जो मिरर है जो कि M2 था, वो जब तक रे ऑफ लाइट, जबकि फोटॉन्स जो उस सोर्स से, जो फोटोन M1 से निकले, रिफ्लेक्ट होके निकले, जब तक वो M2 तक पहुंचेंगे तब तक M2 की तो लोकेशन ही चेंज हो गई है. M2 तो यहां पहुंच गया है. दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ M2. M2 प्राइम लिख दिया मैंने उसको, आगे पहुंच गया है. एंड व्हाट इज हैपनिंग, ray of light has to travel a longer distance over here to hit back at the mirror M2 dash to create a torque again. So tick tock, it takes a longer time. थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया. And then what happens, the meanwhile, अब जब रे ऑफ लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली कहानी तो आपको आती है.
तो जो मिरर M1 था वो भी तो वही मूव कर रहा था। देखो मिरर M1 यहाँ पहुंच गया उतनी देर में, जब ये वाली रे M2 को हिट करी तो मिरर M1 तो इस पोजीशन पे पहुंच गया था। अब रे वहां से वापस शुरू हुई रिफ्लेक्ट होके यहां जाने लगी, तो मिरर M1 भी तो आगे जा रहा था, तो जो मिरर M1 था वो अब यहां पहुंच गया और फाइनली जाके ये रे ऑफ लाइट यहां हिट कर गई। तो ये ऑसिलेशन तो हो ही रही है, ये तो अभी भी ऑसिलेशन हो रही है, ऐसे ऐसे। पर मेरे को लग रहा है थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, इस गोना स्लो डाउन, और ये जाके अब M1 को हिट करी और मेरा टिक वापस क्रिएट हो गया है। सो पहले वाले इवेंट में, जो फर्स्ट वाला इवेंट था, उसमें टिक टॉक ये पेस सेटअप था, और अब जो मेरा इवेंट है जिसके अंदर भाई मेरा फ्रेम ही मूवमेंट है, फ्रेम ही मूव कर रहा है, जो मेरे से वही मूव करने लगे, तो ये पेस ऐसी सी नहीं हो गई है, टिक टॉक tick tock. It is happening. See this an animation before. It's not an animation. This is still animation over here. So इसमें टिक टॉक हो रहा है in the first case, और इसमें टिक टॉक ऐसे हो रहा है. So this is what I wanted to explain to you. This is what Einstein basically thought provoked in our mind, and what is happening exactly. So do I want to see an animation also for it? So let's observe a simple animation for it, that how does it basically look like, so you're able to see that what is happening here. This is a simple tick tock tick tock right? Okay, done. So this was the first one, and so the second one also propping up on your screens right now. Oh, see, that's what I told you, as tick, then talk, then tick, then talk, but this time it's gonna take a longer time over here because the path has become longer over here. Let's observe these things now. अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल एज देते हैं और इन बातों को समझना शुरू करते हैं. So these are the diagrams which you can see. You can find them so many diagrams of the same like. एक ही तरीके से बात मुझे समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है. तो मैं आपको समझाता हूं थोड़ी मैथमेटिक्स के साथ में, और आप मेरे साथ समझेंगे बात को. तो दो तरीके के टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं. एक तो टाइम है दैट इज टी नॉट, विच इज सपोज टू बी द टाइम टेकन बाय, या टाइम टेकन क्या बोलो, टाइम observed by a stationary clock, right? Time taken by a stationary clock, and then I introduce t over there, that is a time observed by a moving clock, time observed by the moving clock, right? So this is what I am using, t naught and t. एक टाइम किसमें मेजर्ड है, जब स्टेशनरी बिहेवियर है, और दूसरा जब मूविंग बिहेवियर है, मतलब जब मिरर्स मूव करें. सो मिरर एक्सपेरिमेंट बेसिकली. सो ये स्टेशनरी वाला बिहेवियर हो गया टी नॉट, और ये टी वाला बिहेवियर हो गया. तो पहले मैं टी नॉट की वैल्यू निकालता हूँ. उसके लिए ये जो लेंथ है इसको मैं एच लिख रहा हूँ, ये जो हाइट होगी बेसिकली मेरे को दिख गई. सो दैट इज अ वैल्यू फॉर द टी नॉट ओवर देयर फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम से, दिस डायग्राम से टी नॉट की जो वैल्यू है किसके बीच में, एक टिक और एक टॉक के बीच में, है ना. एक टिक और एक टॉक के बीच में द टी नॉट बिकम्स इक्वल टू एच अपॉन सी. आई told you one thing, don't forget that the speed of light is going to remain the same in all the frames. This is a fact which I've told you beforehand. Right, now what happens, this is a moving frame for me now. Since it is supposed to be the moving frame now, so the frame must be moving with some speed. तो वो जो speed है वो किस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू कितनी है, it's moving in this direction and with the speed of v. We have assumed that what's the speed, that's a v. What's a v? That's the speed of the frame. That's the speed at which these mirrors are actually moving. Okay, fine, done. So then what happens, जो मिरर है, जो ऊपर वाला मिरर है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ट्रैवल दिस डिस्टेंस बिफोर द रे ऑफ लाइट हिट्स इट फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब टिक से जब वो टॉक तक पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, दैट फील्स टू बी द डायगोनल लेंथ ओवर है. तो ये डिस्टेंस अगर x है और ये h है, सो द डायगोनल लेंथ सीम्स टू बी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. अब लाइट उसी पाथ पे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन इन व्हिच द लाइट इज मूविंग, दैट्स अ लाइट मोशन ओवर देयर. एंड डू रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इन एनी रेफरेंस फ्रेम. पहले स्टेशनरी फ्रेम है, अब मूविंग फ्रेम है, पर c की वैल्यू c ही रहेगी, वो नहीं बदलने वाली है. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द t, द टाइम एट व्हिच दिस रे ऑफ लाइट हिट्स द अपर मिरर. तो डिस्टेंस थोड़ा लंबा हो गया, that becomes root of x square plus h square over there,
एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड. स्पीड तो नहीं बदली थी. डिस्टेंस किसने ट्रैवल करा? आपने नहीं करा है. ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल करा है? रे ऑफ लाइट ने करा है. और रे ऑफ लाइट की स्पीड कितनी है? c है. Assuming it in the vacuum of the air right now. So that's root of x square plus x square by c. So you can see that the t is seemingly more than t naught over here, and that's what I wanted to explain to you. Einstein wanted to explain to you that what is happening कि जो t है वो कौन से फ्रेम में है? मूविंग फ्रेम में. वहां पे जो टाइम है वो ज्यादा आ रहा है. अब कितना ज्यादा है, क्या रिलेशन है, हम उसको भी डिराइव करते हैं. लेट्स डिराइव दिस फ्रॉम हियर. So the t from here should be written as equal to root of x square plus x की वैल्यू को vt लिख लेते हैं. क्यों लिख रहे हैं भाई ऐसा? क्योंकि जो फ्रेम की स्पीड है वो कितनी है? v. और राइट साइड है तो मिरर कितना डिस्टेंस मूव करा? दैट वाज डिस्टेंस एज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड v. और कितने टाइम में? t टाइम में. t इज अ टाइम ऑब्जर्व्ड बाय द मूविंग क्लॉक. करेक्ट, वेरी गुड. सो x की जगह कितना आ गया? vt. सो दैट्स v स्क्वायर t स्क्वायर एंड दिस इज अपॉन c. अब देखो t जो है इस एक्सप्रेशन में इधर भी और इधर भी है. मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है? t को एक ही जगह लेकर आना है. तो मैं इस इवेंट को स्क्वायर कर लेता हूँ, मतलब इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर लेता हूँ. सो द मोमेंट इज स्क्वायर इज इट बिकम t स्क्वायर एज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. राइट, करेक्ट. तो दैट इज t स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t स्क्वायर. इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं, सिंपल क्रॉस कर दिया मैंने. अब टी स्क्वायर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, नोइंग द फैक्ट कि सी की वैल्यू तो वी से ज़्यादा ही होगी, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है. सो आई हैव टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन है एक तरीके से, तो कोई डिफिकल्टी भी नहीं है, तो मज़ा आ रहा है और लग रहा है कि हाँ फाइनली हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ कुछ समझ में आएगा. सो दैट टी स्क्वायर फ्रॉम हियर दैट बिकम्स एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. सो मुझे टी की वैल्यू मिल जाती है. Finally, I am able to get this as h upon root of c square minus of v square. That's the value for the t which I am getting over here. अब मैं इसको थोड़ा मोल्ड करके लिखता हूँ and I can write this as equal to h upon, मैं c बाहर निकाल लेता हूँ रूट में से. So can be written as 1 minus v square upon c square as this. That's the t over here. और फिर मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करा तो मुझे समझ में आया कि जो h अपॉन सी है दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? टी नॉट. टी नॉट कौन सा टाइम है? जो कि स्टेशनरी क्लॉक ने ऑब्जर्व करा हुआ है. तो मैंने यहाँ पे h अपॉन सी की जगह टी नॉट को प्लेस कर दिया. क्या कर रहा हूं मैं? टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे प्लेस इन कर रहा हूं. सो आई एम गेटिंग अ रिलेशन नाउ दैट इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एंड ये रिलेशन शायद मैंने पहले देखा हुआ है, सुना हुआ है, आज मेरी जिंदगी में आ गया है. इज सरफेसिंग आउट फॉर मी एंड दिस रिलेशन इज फाइनली वर्किंग आउट एज टी इक्वल टू टी नॉट एंड इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एंड दिस रिलेशन इज इंट्रोड्यूस. कौन सा रिलेशन? जो ये आपको दिख रहा है ये वाला रिलेशन, ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज होता है और वहीं से इसकी एग्जिस्टेंस शुरू होती है. Lorentz is something which you will read extensively in the electrodynamics जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस आउट करेंगे. सो इस एक्सप्रेशन को नाम दिया जाता है एज गामा. गामा, you know the symbol of gamma? That's gamma is equal to 1 upon under root of 1 minus v square by c square. And so this appears simple now that the t is supposed to be equal to t naught into gamma. That's the relation between the two observed times. That is that t is more than t naught. ये आपको कैसे पता चला कि t की वैल्यू t naught से ज़्यादा है? क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि गामा का डिनोमिनेटर चेक करो, दैट इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. इसका मतलब वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर नॉन जीरो है. अगर तो रेस्ट पर होगा तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? जीरो. मतलब वी जीरो है. सो इफ वी इज इक्वल टू जीरो, let's mention this out also, that if v is equal to 0, in that condition gamma की वैल्यू exactly 1 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? exactly 1 हो जाएगी अगर v equal to 0 है. तो मतलब ये फैक्टर आपको अपीयर नहीं होगा, फिर t की वैल्यू t नॉट हो जाएगी. इसका मतलब दोनों स्टेशनरी फ्रेम हो जाएंगे. पर अगर v की वैल्यू नॉन जीरो है, सो इन दैट कंडीशन डिनोमिनेटर में 1 में से कुछ माइनस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 1 से कम हो जाएगा, तो गामा की वैल्यू राइज कर जाएगी.
but the value for the gamma is going to become more than 1. And the moment the value for the gamma becomes more than 1, by this expression, we can mention that the t is supposed to be more than t naught, जो फैक्ट हमने पहले ही अपने आप को एक्सप्लेन करा था कि मूविंग फ्रेम में टाइम ऑब्जर्वेंस लॉन्गर होगी, ज़्यादा होगी. सो वो बात हमने अब फॉर्मूले में भी डाल दी है. फॉर्मूला मिल चुका है आपको टी और टी नॉट के बीच में, और इस गामा को हम क्या बोलते हैं? एज अ टाइम डायलेशन फैक्टर. सो we have understood this particular term and also derived this, and this is labeled to us for us as the time dilation factor. That's a time dilation factor, where we are able to see that if you are in a moving frame, in that case the time observance is different और थोड़ा ज़्यादा लगेगा. That was a fact which we have learned about from here. चलो, so see this idea is so simple. ये देखो, ये राइट साइड पर डायग्राम है क्लॉक्स का डायग्राम देख रहे हो? से क्लॉक का डायग्राम है. ये पहले वाला केस है जिसके अंदर क्लॉक स्टेशनरी थी और अब ये क्लॉक मूव कर गई है. दिस क्लॉक हैज मूव, सो इट्स अ मूविंग क्लॉक. It's a moving clock, and this was supposed to be the stationary clock, and you can see that time is taking longer in the moving clock, right? So that's what the difference it makes, and the relativity idea kicks on from here and kicks on. So see, I've given you a visual over here by this diagram. See this? So event 1 you see is supposed to be the emission of light, and the event 2 is the return of light. That was supposed to be the event. And so it was tick tock tick, right? Tick tock. This was supposed to be the tick. This was supposed to be the tock, and this was back as a tick over here. So tick tock tick, and see how much time has passed by over here. This is the time which has passed by over here, right? And now what happens that now the clock itself moves, so the frame moves. So see this is in the motion over here. So this is the same event 1 and the same event 2. It's the same physical event. Event 1 क्या था? Emission of light. Event 2 क्या था? The reception, the receiving of the light. यही event है, पर ये थोड़ा delayed हो गया है, जो मैंने आपको समझा दिया. और ये क्लॉक की रीडिंग देख लो यहाँ पे, ये आपकी ज़्यादा आ रही है. So we're able to see that how the time is ticking differently now to both of the situation. Event same था, that was basically the reflection of light over there and returning back to the same place, पर टाइम की वैल्यू डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन. सो ये आइडिया आपके दिमाग में थोड़ा फिट हो गया है और रिलेशन आपको आ गया है. तो हम कुछ बातें करते हैं जो हमारे अगले लेक्चर्स में हमारे काम आएंगी. सो पहला मिसकॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में कि सर ये तो आपने मिरर से कराया है, सो दिस आइडिया इज एप्लीकेबल ओनली टू द मिरर्स. मैंने कहा ऐसा नहीं होता है. जैसे न्यूटन लॉज होते हैं एक तरीके से डिराइव करे जाते हैं, कोई भी लॉज होते हैं वो एक तरीके से डिराइव करे जाते हैं, पर उनकी एप्लीकेशंस बहुत जगह होती हैं. सो हमने डिराइव जरूर इस आइडिया को मिरर्स के थ्रू करा है, लेकिन इस काइंड ऑफ अ फैक्ट विच इज गोइंग टू बी देयर फॉर अस फॉर ऑल द क्वेश्चंस इन द स्पेस टाइम फ्रेम. सो इट इज गोइंग टू बिकम अ fact for the space time frame. So answer for this misconception is no. This is derived through the idea of the mirrors, that is a reflection of the mirrors, that is through the reflection of mirrors, but it is applicable, because relativity is a general idea. It's not constrained कि सिर्फ आप यहीं लगा सकते हैं एक फिजिकल का सिचुएशन में, एक फिजिकल इवेंट में दूसरे में नहीं लगा पाएंगे. ऐसा नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये सब जगह लगती है. सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिचुएशंस मतलब हम फिजिकल इवेंट्स को बोलते हैं. सो ऑल द इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू स्पेस टाइम फ्रेम, which are related to the space time frame. और ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो कि आप बिना स्पेस टाइम फ्रेम के करते हैं, बट इसके अंदर आप कोऑर्डिनेट्स को यूज़ नहीं करते हैं. सो और जहाँ पे लाइट वाइट नहीं होती है. सो आई थिंक दैट ऑलमोस्ट इट्स एवरीवेयर. सो दैट मीन्स इट्स अ आइडिया विच इज सपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, पर इसकी एप्लीकेशन, इसके पर जो है वो सब जगह हैं. सो आई हैव checked on the fact over there that is going to be applicable to lot of places and every space time reference frame. Space time frame मतलब that's a space time reference frame like this. So do remember, it's a well known thing and is going to remain with you. आप पढ़े ना पढ़े ये आपकी चॉइस है, पर ये हमेशा होता है, ये ध्यान रखें. आप कुछ स्टूडेंट्स चॉइस कर लेते हैं, ओ सर छोड़ो इसको, आसान तरीके से समझा दो. वैसे मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, ये बहुत आसान तरीका, सबसे आसान तरीका जिससे मैंने इसको आपको समझा दिया है. एंड एक और मिसकॉन्सेप्ट है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है
कि मेरे मतलब एज ए स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ। तो इफेक्ट इज कॉज बाय सम फोर्सेस, क्योंकि हमें सिखाया गया है ना कि देखो हर चीज़ के पहले कोई वजह होती है। और न्यूटन मैकेनिक्स जो होती है उसमें डायनामिक्स की एक दुनिया इसलिए बनाई गई थी कि हम हर चीज़ के पीछे की वजह बता सकें कि भाई गाड़ी क्यों चल रही है, लाइटनिंग क्यों स्ट्राइक हो रही है ना, मोटर कैसे चलती है, सबके पीछे की एक रीजनिंग है। तो हमें लगा कि भाई इसके पीछे भी कोई होगा, कोई जोर होता होगा जिसकी वजह से सारी कहानियां हो रही हैं, कोई फोर्स वोर्स लगती होगी जिसकी वजह से कोई सूडो वूडो फोर्स होती होगी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। देयर इज नथिंग समथिंग लाइक कि सूडो फोर्सेस के थ्रू आप इस आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने मिसकॉन्सेप्ट को दूर कर लीजिएगा। ये आइंस्टाइन का बिहेवियर थॉट है, ये न्यूटन सर का नहीं है। न्यूटन सर की फ्रेम्स में मिसिंग फोर्सेस को हम सूडो फोर्सेस बोलते हैं। पर ये आइडिया ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है, इसके अंदर सूडो फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट कोई फोर्स ही नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, सब कुछ रियल है। एवरीथिंग इज रियल, देयर इज नथिंग इमेजिनरी ओवर हियर। आप सोचते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को इमेजिनरी, पर उनके इफेक्ट्स सारे रियल होते हैं। सो दिस इज नॉट कॉज बाय एनी ऑफ द फोर्स। द रीजन फॉर दैट इज, रीजन फॉर मैं फॉर्म बिलीविंग कि फोर्स की वजह से नहीं हुआ। रीजन द फ्रेम विच वॉज इन द मोशन वॉज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। Repeating again, the frame which was supposed to be in the motion was moving with a constant velocity, और constant velocity motion को maintain करने के लिए my friends कोई भी force की जरूरत नहीं होती है। So the fact check of this is that this is basically not true. This is no, there is no force involved in this. There is no force involved in this relative event. ऐसा है भाई, फोर्सेस हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फोर्सेस, मैग्नेटिज्म फोर्सेस हो सकती हैं जो कि आएंगी, दिखेंगी आपको, पर वो दिखेंगी मतलब वो रियल फोर्सेस हैं, दे आर रियल, उनके इफेक्ट्स रियल हैं। आप मैग्नेटिज्म फोर्स को फील कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकते हैं, सब कुछ रियल होगा। पर इस आइडिया में कि भैया टाइम डायलेशन फोर्स की वजह से हो रहा है, बिल्कुल गलत है। देयर इज नो फोर्स इन्वॉल्व इन दिस सिंस नो फोर्स is required to maintain the constant velocity of the frame. Right my dear? अब वो अगर कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम आ जाता तो फिर वो सूडो फोर्सेस वाली कहानी आ जाती, तो वो सब नहीं है। हम मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब मूविंग फ्रेम की बात कर रहे हैं, मतलब जिसकी स्पीड कांस्टेंट है। तब आपको कोई फोर्स का बिहेवियर इसके पीछे नहीं है कि टाइम डायलेशन उस फोर्स की वजह से हुआ है। रिवर्स इज समथिंग एल्स। टाइम डायलेशन अगर है, वो तो है, पता चल गया कि टाइम डायलेशन तो है। टाइम डायलेशन इफेक्ट कर सकता है कि आप क्या फील करते हैं। तो एक स्टैटिक चार्ज की वजह से आप क्या फील करते हैं और एक मूविंग चार्ज की वजह से आप क्या फील करते हैं, वो इफेक्ट डिफरेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? रीजन द टाइम डायलेशन फैक्टर हैज बीन जनरेटेड, और उसकी वजह से जिस तरीके से जिस इंस्टेंट पे आप उन फोर्सेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आपको डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस हो सकती हैं, फील हो सकती हैं। तो भाई हमें कैलकुलेट करके भी बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर डिफरेंस कैसा है। और यहीं पे ब्यूटीफुलनेस आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म की, उन फैक्ट चेक्स की, कि जो स्टैटिक चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, एक मैग्नेटिक फोर्स आएगी, पर मैग्नेटिक फोर्स तभी आएगी जब एक मूविंग चार्ज आएगा। कैसे आएगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ माय न्यू वीडियो, द नेक्स्ट वीडियो। यू नीड टू वॉच दैट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि ये लेक्चर, ये आइडिया मैंने क्यों बनाया था, तो आपको समझ में आएगा और आपकी नींव बहुत स्ट्रांग होगी अगले चैप्टर में वॉकिंग करने वाली। तो मैं इस स्टेटमेंट में क्या छोड़ने वाला हूँ आपके दिमाग में, जो रजिस्टर हो आपके दिमाग में, कि टाइम डायलेशन इफेक्ट द एक्सपीरियंस। आप जिस तरीके से फील करते हैं, टाइम डायलेशन उसको बदल देता है। इफेक्ट्स द एक्सपीरियंस एंड द कैलकुलेशन, या फिर मेजरमेंट, जैसे आप बोलना चाहें, ऑफ द फोर्स, राइट, ऑफ द फोर्स इन द फ्रेम्स। इसका मतलब कोई हो सकता है स्टेशनरी फ्रेम हो, उसके अंदर जो मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ फोर्स आपकी आ रही हो वो डिफरेंट होगी। और अगर कोई फ्रेम मूविंग होगा तो उसके अंदर मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स जो होगी वो आपकी डिफरेंट होगी। दैट विल क्रिएट मैग्नेटिज्म आर्टिकल, माय डियर। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट द मैग्नेटिज्म। आपके घर में एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या मैग्नेटिज्म भी आ रहा है? सो दैट विल बी अवर नेक्स्ट लेक्चर पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म कमिंग टू योर हाउस होल्ड टुगेदर माय डियर। व्हाट इज एक्स्ट्रा थिंग्स जो कि हमने अब इतनी ही मेहनत से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर झांका है, स्नीक पीक किया है। व्हाट आर द एक्स्ट्रा थिंग्स? टू कपल ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स ओवर हियर। सी दैट there is a length contraction over here,
एज अ फैक्टर, उसके लिए फॉर्मूला भी आपके सामने। ये बहुत मज़ेदार बात है कि अगर कोई चीज़ तेज़ी से जा रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, सो डेफिनेटली ऐसा होगा कि उसका साइज छोटा दिखने लगेगा, इट विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स। एंड सो दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज लाइक दैट कि हम जब किसी मूविंग फ्रेम में होंगे तो हमें ऑब्जेक्ट्स के साइजेस स्मॉल परसीव होंगे, दे विल बी स्मॉलर, लेकिन वो हेवियर परसीव होंगे। कैसे हेवियर? बाय द मास चेंजेस ओवर हियर, दैट्स एक्सप्रेशन, ये आपको बहुत टाइम से पता है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ आपके लिए भी। सो वी नो दिस रिलेशन एंड वी डू नो दैट कि एम की वैल्यू जो है वो एम नॉट से ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो गामा फैक्टर होता है, जैसे बेसिकली एम इज इक्वल टू एम नॉट इन टू गामा, एंड गामा फैक्टर इज सपोज टू बी मोर देन वन, क्योंकि गामा की वैल्यू मोर देन वन है, इसका मतलब एम की वैल्यू जो है वो एम नॉट से ज़्यादा है। सो you perceive the things heavier, and your size becomes smaller if you are moving in a frame. There's a story behind that, and there was a person, उन पर्सन का नाम आइंस्टाइन भी बोल सकते हैं, he got a ticket flight to move to a dwarf star known as a Pluto, and so there was a spaceship which can move with a very high speed, closer to the speed of light, not exactly the speed of light but closer to the speed of light. And so he took that particular ticket and went into the plane, and while he was moving in the plane he basically felt a lot heavier. And while he was observing his fellow friends sitting next to him, he found them to be shorter in length while he boarded that particular flight. So he was not feeling heavier, and size of his like friends was larger than he thought, a larger king size image, पर अब वो छोटे लग रहे थे. So then he fact checked it, he cross checked this with his theory, he found the same things, that as he is in a motion state, he is finding the m to be more than m naught, so he's feeling heavier, and he's finding the length to be contractive, so he's finding himself also, if you see his image and he see his friends also in comparison to what they were at the earth initially, he will find him to be shorter and heavier. But that's something which we don't want in our life, na? We don't want to be shorter and we don't want to be heavier, right? So both the things are effective. So it's better to stay at earth, because you will be not shorter and you will not be heavier, राइट. सो इस फन फैक्ट से मैंने आपको ये छोड़ा, और एक क्यूरियोसिटी के साथ में जो आपके दिमाग में रहती है, आपने सुना होगा द ट्विन पैराडॉक्स. माय डियर, ट्विन पैराडॉक्स सुना होगा. दे वर ट्विन्स व्हिच वर बोर्न वन डे, ऑफ कोर्स दे विल बी बोर्न ऑन अ सिंगल डे, एंड व्हेन द ट्विन्स वर बोर्न and one of them got a ticket flight to the planet dwarf, the Pluto, other one did not, sorry fellow, he did not, so he did not get it. And what happened, this guy went up, उसका जो twin brother था वो तो चला गया, या ट्विन सिस्टर थी वो चली गई, और वो घूम फिर के वहाँ से वापस आ गया. जब वो वापस आई तो दोनों की एज में डिफरेंस आ गया. किसमें? दोनों ट्विन्स की एज में डिफरेंस आ गया. दिस इज नोन एज ट्विन पैराडॉक्स. एंड व्हाई डिड इट हैपन माय डियर? बिकॉज द वे दे परसीव्ड द टाइम was different. So one of them aged and the second one did not age, क्योंकि जो टाइम बिहेवियर था दोनों के लिए डिफरेंट हो गया. तो एक डायग्राम देखो आप, अरे देखो जी, डायग्राम देखो, ये देखो पहले वाला डायग्राम देखो आप, और दूसरा वाला डायग्राम देखो, पहले वाला डायग्राम पहले देखो. तो उसमें ये एस्ट्रोनॉट मूव कर रहा है एंड इज मूविंग, और फिर उसकी क्लॉक देखिए आप, ये उसकी क्लॉक बिहेवियर है, और ये बंदा आराम से धरती पर बैठा है और उसका क्लॉक बिहेवियर देखिए, नॉर्मलाइज क्लॉक है, और इसकी क्लॉक डिफरेंट हो गई है जो फास्ट मूव कर रहा है. एंड सी दिस व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज नोन एज ट्विन पैराडॉक्स. एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, कोई एक्स्ट्रा डिस्कशंस होगी हम ऑफ ट्रैक कर लेंगे. अभी के लिए इट्स वेरी सिंपल थिंग. व्हेन इट स्टार्टेड फ्रॉम द अर्थ, बोथ आर ट्विन्स. देखो रूपरेखा में दोनों सेम लग रही हैं, बिल्कुल सेम लग रही हैं, और दोनों की जो क्लॉक है वो सेट है जीरो के ऊपर. अभी 12 बजे दोनों के अंदर, दोनों जीरो पे सेटअप है. एंड देन द शिप ट्रेवल्स एट द रिलेटिविस्टिक स्पीड. एंड व्हेन इट ट्रेवल्स, व्हाट इज द रिलेटिविस्टिक स्पीड माय डियर? That is when the speed is supposed to be more than 0.01 c. That is known as a relativistic speed. And when this happens, you can see the clocks for them have differed. And at the end of the trip, जब वो वापस आ गई है, so the time clock has ticked differently for them. And so this has aged up. And she is still young over here. So that's the twin paradoxes because of the slowness of the time. So what I'm going to leave you with a memory. I'm going to leave you with a memory of this idea. And this idea is very simple. Is my poor guy who is on the earth. इसको कोई टिकट विकेट मिली नहीं है, ये अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके लिए टाइम नॉर्मल है जैसे मेरे और आपके लिए है. हम दुनिया में रोज जीते हैं इस तरीके से, कोई एक्साइटमेंट नहीं है हमारे जीवन में, पर इसको एक्साइटमेंट मिल गई है. नासा वासा चला गया, एस्ट्रोनॉट वेस्ट्रोनॉट बन गई है,
और ये चली गई और ये दिखा रही है कि भाई देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, आई एम लिविंग यंग, आई एम लिविंग यंग, क्योंकि मेरे लिए टाइम क्या है, स्लोअर टिक कर है, मेरी ऑब्जर्वेंस ज़्यादा है पर द स्लोअर दैट क्लॉक इज टिकिंग स्लोअर, रीजन बिकॉज वो खुद तेजी से जा रहे हैं, सो द क्लॉक इज टिकिंग स्लोअर, एंड सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड यू टू लर्न फॉर द टूडेज लेक्चर, and I'm through with this. So we'll definitely meet up in the next lecture and see what are the repercussions from this, what is an idea which is going to come forward for this, and how does the magnetic forces live up to our expectations from the idea of the Einstein theory of relativity. Thanks for watching this. Please subscribe to my channel. Thanks a lot. Bye everyone.